مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الوسقا قرآن اکیڈمی میں تمام ناظرین کا میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہمارے پروگرام کا تیسرا دن ہے۔ قرآن کا پہلا سورہ فاتحہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم جسے کہا گیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جس کا مرکزی مضمون یعنی اس کے سینٹرل تھنک جو ہے وہ بنیادی عقائد، توحید، آخرت اور رسالت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو ذکر کیا۔ اس کے بعد یہ کہ سورہ فاتحہ میں ہم کو بتایا گیا کہ شریعت کے احکامات پر کس طرح عمل کرے۔ گویا کہ سورہ فاتحہ ایک سمری ہے، ایک خلاصہ ہے۔ انسان اس میں اپنے عاجزی کا اقرار کرتا ہے کہ میں محتاج ہوں اور اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے ہدایت کے لیے۔ دیکھیے ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ جس میں ہم نے سورہ فاتحہ کو تھوڑا سا ہم پیچھے سے مطالعہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا پہلی گزشتہ آیتوں میں۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا اعوذ باللہ، کہ انسان جو ہے اللہ جب شروع کر رہا ہے اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے تو گویا کہ وہ شیطان سے پناہ مانگ رہا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوسری بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یعنی سب اللہ کی طرف سے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ کے ہم محتاج ہیں۔ یعنی اللہ کا نام لے کر ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ سب جو ہے اللہ کی چاہنے سے ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہم جب اس کے آگے بڑھتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگ رہے ہیں، یعنی مدد طلب کر رہے ہیں اور عبادت کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ عبادت کرنا اللہ کا حق ہے اور مدد طلب کرنا یہ بندوں کی مجبوری ہے۔ اس کے بعد آگے ہم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے آج کی آیتیں ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اہدی آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اپنے آئی پیڈ میں دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں، اور بہت اچھا ہوگا کہ ہمارے پاس قرآن پاک کا نسخہ بھی اگر سامنے ہو۔ تو ناظرین، اہدی اصل میں اس کا روٹ ورڈ جو ہے، اس کا مادہ جو ہے، کیونکہ مادہ مذکر مؤنث نہیں، مادہ یعنی جس سے الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ 3 حروف سے بنتے ہیں۔ تو اس میں ہے دال یا، ہدا یہدی ہدایت دینا، اور اس سے کئی الفاظ بنتے ہیں جیسے ہادی، محتد، تو ایسے الفاظ اس سے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو روٹ ورڈ اس کا ہے دال یا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے، رہنمائی دے، راستہ چلا۔ تو دیکھیے، ایک راستہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ بھائی وہ راستہ کہاں ہے، وہ جگہ کہاں ہے، وہ ہوٹل کہاں ہے، تو کوئی یہ بتا دیں گا ادھر سے جاؤ، لیفٹ جاؤ، رائٹ جاؤ، ہے نا، کوئی ایسا بتا دے۔ لیکن ایک راستہ بتانا ہوتا ہے، ہدایت کر دینا کہ بھائی اس کے پاس وہ ہے۔ لیکن ایک ایسا راستہ بتانا ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر بتا دے۔ تو 3 معنی ہو ہدایت کی۔ نمبر 1 سجا دینا، اشارہ کر دینا، یا تو ساتھ لے کر پہنچا دینا۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں
کہ اللہ ताला हमें हमारे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। आप सुन रहे हैं ना, आपकी क्या राय है? हमारी क्या है मंजिल मकसूद? क्या है? वही मंजिल मकसूद है जहां से हमारे अब्बा जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को निकाला गया था। तो गोया के हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। देखिए ये दुआ अल्लाह से हम मांग रहे हैं, है ना, कि ये हर दिल में बैठ जाना चाहिए दुआ हमारे, और जुबान से दिल में जब बैठेंगी तो जुबान से भी निकलेगी। तो देखिए है दुआ अल्लाह से हम मांग रहे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमारे हमें सिरात मुस्तकीम पर चला दे। अब हिदायत की जरूरत क्यों है भाई? हिदायत की जरूरत इसलिए है कि हिदायत के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। हिदायत ये एक बहुत बड़ी नेमत है। देखिए हम हिदायत भी क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? सिरात मुस्तकीम की मांग रहे हैं। ना माल मांग रहे हैं, ना दुनिया मांग रहे हैं, मांग रहे हैं क्या? मांग रहे हैं सिरात मुस्तकीम की हिदायत। अब सिरात क्या है? देखिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको उर्दू में भी, सिरात, सिरकुल सिरात बोलते हैं ना, रास्ता, उसके माने होते हैं, सिरात के माने रास्ता। तो उस रास्ते के साथ क्या लगा हुआ है? मुस्तकीम। मुस्तकीम के माने देखिए, मुस्तकीम कहते हैं जो के मकसद तक पहुंचा दे, जो मकसद है हमारा वो मकसद तक हमको पहुंचा दे। दूसरा है कि सबसे ज्यादा नजदीक और करीब आसान रास्ता, ये भी मुस्तकीम के माने। तीसरा माने है इसके जो कि वसी हो और कुशादा हो। चौथे माना है कि मकसद तक पहुंचने के लिए उसके सिवा कोई ना हो, कोई दूसरा रास्ता ना हो, उसको कहते हैं सिराते मुस्तकीम। यानी मकसद तक पहुंचाए, सबसे ज्यादा नजदीक हो, करीब हो, वसी और कुशादा हो, और मकसद के पहुंचाने के लिए उसके सिवा कोई रास्ता ना हो। तो यह है देखिए सिराते मुस्तकीम। और अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा बताया कि सिराते मुस्तकीम एक एक लाइन खींचकर बताई, और एक सीधी लाइन बताई, और उसके पीछे पगडंडियां बताई, टेढ़े मेढ़े रास्ते बताए। लेकिन बताया गया कि जो सीधा रास्ता जा रहा है ये सिराते मुस्तकीम है, ये हिदायत का रास्ता है ये। और जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जो खुले रास्ते हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं, वो हराम करदा चीजें हैं, वो गुड़मुड़ रास्ते हैं, वो पगडंडियां है जिसके अंदर इंसान भटक कर सीधे रास्ते से भटक जाता है। तो हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब देखिए सीधा सीधे साधे अल्फाज में सिरात मुस्तकीम यानी क्या है कि भाई इस्लाम है और कुरान है। अल्लाह के रसूल ने इसी को सिरात मुस्तकीम बताया है। और हिदायत के रास्ते के लिए पता ये चला कि तरबियत के लिए हमें किताब होनी चाहिए, किताब यानी कुरान। पता ये चला कि हिदायत कब मिलेगी? जब किताब यानी कुरान और प्लस सुन्नत, ये दोनों का मजमुआ, दोनों को मिलाएंगे तो ये है सिरात मुस्तकीम। यानी हमारे दीन की तकमील कब होगी? कब दीन पूरा होगा हमारा दीन इस्लाम? के जब हमारे पास किताब भी हो, उसवे रसूल भी हो, जब होगा हमारा दीन मुकम्मल। अब उसके देखिए उसके आगे की आयत हम पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। हिदायत याफ्ता लोग जिन पर अल्लाह ने हिदायत जिसको दी, गोया कि उन पर इनाम किया। अनअमता, हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं? जिन पर तूने इनाम किया। अनअमता, इनाम की निस्बत किसकी तरफ कर रहे हैं हम? अल्लाह की तरफ कर रहे हैं, हाँ अल्लाह की तरफ। और इसको देखिए नाजरीन, समझिए इसको, अनअमता है, अनअमा युनेमो इनाम करना, ता कहते हैं मुखातब यानी तूने किया। इसमें अगर गलती हो जाती, देखिए कैसे पढ़ लेते हम कभी कभी गलती से, कभी कभी अनाम तो पढ़ लेते हैं। अरबी बड़ी फसी जबान तो ही है लेकिन नाजुक जबान भी है, जेर जबर से उसके मतालिब और मतलब और मीनिंग बदल जाती है। अनअम तो कहेंगे तो मैंने इनाम किया,
अनामती कहेंगे तो उस औरत तूने इनाम किया, नौज़ बिल्ला। तो इसको बहुत सोच समझ कर पढ़ना है। यानी इससे पता चल रहा है कि हमें इसका नॉलेज, इसका इल्म भी होना चाहिए कि हम तजवीद को हमारी सही होनी चाहिए। तो चलिए हमारे सबक की तरफ के हिदायत याफ्ता लोग अल्लाह ताला ने जिन पर इनाम किया, हम कह रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया उनका रास्ता हमें दिखा। तो देखिए अल्लाह ताला ने किन पर इनाम किया। कुरान की तफसीर हम कुरान से देखेंगे तो कुरान में देखिए है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा की आयत में 69 आयत है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर इनाम किया जो कि नबीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है और सालिहीन। सबसे पहले किस पर इनाम किया अल्लाह ताला ने? अल्लाह के नबियों पर। और सबसे ज्यादा इनाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया। खैर कसीर अल्लाह के रसूल को दी गई। हाँ, कुरान जैसी दौलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर उतारी गई। तो हम अल्लाह से दुआ क्या कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों पर के साथ उनके मतलब हमको हिदायत ऐसे लोगों की दे जो कि सीधे रास्ते पर है और जिन पर तूने इनाम किया। तो सबसे पहले नबीन, फिर देखिए सिद्दीकीन और शुहदा जो कि फिक्र करते हैं, दौड़ धूप करते हैं। और तीसरे चौथे नंबर पर है सालेहीन। सालेहीन यानी जो नेक बंदे। हम इसको थोड़ा सा देखिए समझते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा जमाना बेहतरीन जमाना है। क्या कहा? खैरुल कुरूनी करनी, मेरा जमाना बेहतरीन जमाना है। सुम्मा यलीनहुम सुम्मा यलीनहुम, फिर उसके जो नजदीक है, फिर जो उसके नजदीक है। मतलब इस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेहतरीन जमाना कौन सा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिसने वो सहाबे कराम जिनको के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने ईमानी हालत में देखा। उसके बाद शुहदा है, उसके बाद तबे ताबीन, मतलब जो मेरे उसके बाद है और जो उसके बाद है, मतलब अल्लाह के रसूल के बाद का दौर, फिर उसके बाद का दौर। तो उनको क्या कहते हैं? जिनको सहाबा को जिन्होंने देखा ईमान के हालत में उनको कहते ताबईन, और जिनको ताबईन को जिसने देखा उनको कहते तबे ताबईन। तो देखिए हम अल्लाह से ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला जिन पर तूने इनाम किया है उनका रास्ता हमें चला। गैरिल मगज़ूबी अलैहिम वला ज़ालिन, ये 7 नंबर की आयत है। वो बंदे जिन पर तेरा गजब हुआ और ना ही जो कि गुमराह हुए। तो देखिए इनसे हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि उन लोगों के रास्ते पर मत चला। देखिए इसको समझने के लिए एक बात समझिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि मगजूब कौन है। मगजूब कहते हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, यानी बंदों की नाफरमानी और करतूत और जराइम जब होते हैं और अल्लाह की नाफरमानियां होती है तो अल्लाह ताला का गुस्सा उन पर उतरता है। और याद रखिए जो भी खैर खूबी नेमत होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन जो भी इससे मनफी चीजें होती है जैसा शर होता है और बुराई होती है, हाँ, तो ये सब शर की जो बात होती है उसका ताल्लुक बंदों की तरफ से होता है। तो देखिए यहाँ पर इंसान जो है अल्लाह से ये दुआ मांग रहा है कि मगजूब अलई, जिन पे गुस्सा हुआ अल्लाह उनके रास्ते पर नहीं चला। मतलब ये है मगजूब कहते हैं ऐसे लोगों को जो जानबूझकर अपने आमाल से अल्लाह से नाराजी इख्तियार करे, मतलब ऐसे अमाल करे जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है, या तो फिर अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़े, उन पे अल्लाह का गजब नाजिल होता है। और ज़ालिम, ज़ालिम कहते हैं ऐसे लोगों को जो कि जहालत पर उतर आए, यानी कम इल्मी हो उनके पास, या नावाकियत हो, ला इल्मी हो, उनको कहते हैं गुमराह। तो देखिए ज़ालिम असल में ये ज़ाल से बना हो। ज़ाल कहते हैं गुमराह को, जो रास्ते से गुम हो जाए, गुमराह रास्ते से गुम हो जाना। ज़ालिम उसकी जमा है ज़ाल की। तो देखिए दो गिरोह है यहाँ पर।
ایک ہے مغضوب اور دوسرا ہے ضالین. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے. دیکھیے اس کی وضاحت قرآن سے ہم کو ملتی ہے. ایک تو ہے مغضوب. قرآن میں کہا گیا سورہ بقرہ میں آگے ہم پڑھیں گے 61 کی آیت ہے, بڑی آیت ہے, اس کا ایک ٹکڑا میں بتا رہی ہوں. باؤ بے غضب اللہ, اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کے احکامات کو توڑا, اپنے من چاہی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کی, ان پر اللہ کا غضب ہوا. اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہود پر اللہ کا غضب ہے. اللہ رحم کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہود کے جرائم دیکھیے, ہم اس کے بعد جو سورہ ہماری شروع ہوگی سورہ بقرہ, اس کے ہم اس سورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہود کے جرائم کو ہم پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بھی ان کو کتاب دی تھی توریت کی شکل میں, نبیوں کا سلسلہ جاری کیا ان کی طرف, اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی نہ مانتے ہوئے اپنی من چاہی زندگی بسر کی, احکامات کو توڑا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا غضب میں وہ گرفتار ہو گئے اور اللہ کا غضب ان پر ہوا. دوسری جو ہے ضالین, ضالین کہتے ہیں گمراہ کو. تو دیکھیے یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ مقررہ جو حدود ہوتی ہے اس سے وہ نکل جاتے, یہ افراط یعنی زیادتی کا شکار ہو جاتے, غلو کر جاتے کسی چیز میں, زیادتی یعنی جو لمٹ ہے, جو حد ہے, جو باؤنڈری ہے, اس کو کراس کر جاتے ہیں. مطلب کہ یہ نصارہ نے کیا کیا, اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. دیکھیے توجہ فرمائیے ادھر کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا, اللہ کا بیٹا بنا. گویا کہ انہوں نے عقیدے میں غلو کر دیا, زیادہ بڑھ گئے, باؤنڈری کو کراس کر لیا. تو دیکھیے عمل میں غلو, عقیدے میں غلو, آگے بڑھ جانا, یہ ہے ایک ان کا غلطی تھی جس کو ہم سورہ آل عمران میں تفصیل سے پڑھیں گے. یہودیوں کا ذکر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ میں, اور نصارہ کا ہم ذکر پڑھیں گے سورہ آل عمران میں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری تفصیل ہو گئی سورہ فاتحہ کا ترجمے کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا مل رہا ہے. دیکھیے مقام عبرت ہے یہاں پر, ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. بتائیے ناظرین کتنے بار پڑھتے ہیں ہم؟ صحیح جواب ہے آپ کا تقریباً ہم 17 بار پڑھتے ہیں. اگر فرض نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں فجر سے عشاء تک, تو گویا 17 بار ہم دوہرا رہے ہیں سورہ فاتحہ کو. اور اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس کی تعداد بڑھتی جائے گی. ناظرین ہر نماز میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. جیسا ہم نے پہلے درس میں سنا, اس کے بغیر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. دوسرا ہم نے یہ سنا کہ اس کا نام سبع المثانی ہے. سبع کہتے ہیں 7 کو, اور مثانی کہتے ہیں بار بار دوہرائی جانے والی آیتوں کو. سورہ فاتحہ کا نام یہ اسی لیے ہے کہ بار بار دوہرائی جا رہی ہے. ہم کو کیوں پڑھوایا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سورہ ہم سے کیوں پڑھوائی جا رہی ہے ہر نماز میں؟ کیوں؟ کہ ہم کو یاد رہے کہ جو افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں, کم اور زیادہ جو احکامات میں کر لیتے ہیں, جو اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں, جو غلو کر جاتے ہیں, ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے رہے. دوسری بات یہ حدیث کے ذریعے, حدیث ہے یہ ترمذی کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جس طرح بنی اسرائیل کی طرح جیسے حالت تھے بنی اسرائیل کی, وہی حالت
मेरी उम्मत पर भी आएगी। जैसा अल्लाह के रसूल ने एक जूते को दूसरे जूते के शक्ल देकर बताया कि जैसा एक जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता है, सेम इसी तरह मेरी उम्मत पर भी ऐसे हालत आए। तो देखिए, इससे बचने के लिए कि वो ऐसे करतूत, ये जराइम और उम्मत के जवाल, उम्मत जो यहूद और नसारा पर आया है, तो हम एहतिसाब करें, हम अपना खुद का एहतिसाब करें। हम ये याद रखें कि उनके जो हालात उन पर आए हैं, इसी वजह से आए हैं कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। तो देखिए, हमको इससे बचना है, हमको ये समझना है। अब देखिए, उसके बाद ये तो पूरे सूरह फातिहा मुकम्मल हो गई। उसके बाद हम देखिए आमीन कहते। आप सोचेंगे वहां तो आमीन लिखी नहीं है, और वाकई आमीन नहीं है, लेकिन ये मसनून है। कुरान में लिखा नहीं है आमीन, लेकिन हम पढ़ते हैं ना, इसलिए पढ़ते हैं। ये मसनून तरीका है, मतलब दुआ जो है हम जुबान से मांग रहे हैं और दिल से पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह इसको। तो हदीस में ये बात आती है कि जिसकी आमीन भी फरिश्तों की आमीन से मिल गई, उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते। ये बुखारी की हदीस। पता ये चला कि हम जब दुआ मांग रहे होते हैं, हम जब दुआ सुन रहे होते हैं और दिल से मांग रहे होते हैं, तो हमारे दिल से ही आमीन निकलती। आमीन के क्या माने हैं? आमीन के माने ये है कि ऐसा ही हो, यही हो। यानी जो आमीन कहते हैं, मतलब जो दुआ मांगी जा रही है कि अल्लाह से हम ये मांगते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा ही हो, यही सही हो, तो ये है आमीन की वजह। अब देखिए, सूरह फातिहा के मुताले में कुछ दर्जे में हमारे मुकम्मल हुई। यहाँ पर हम देखते हैं मुख्तसर वक्त में कि यहूदियों की बुराइयां का जिक्र कुरान में किया गया। एक चार शीट आएंगे आगे, हम देखेंगे। और यहाँ पर कहा गया कि अल्लाह का गजब उन पर हुआ। जैसे कि देखिए, एक मिसाल से मैं बताती हूँ। हमारे दो बच्चे हैं, हम बाहर कहीं जा रहे हैं, बड़े बच्चे को कहते हैं कि देखो बेटा, उसमें मिठाई रखी है, खाना नहीं। और जब हम बाहर से आते हैं तो देखते हैं बड़ा बेटा, छोटा भी बैठा है खाने के लिए और बड़ा भी उसके साथ। तो हमें गुस्सा आएगा ना? किस पे आएगा? बड़े पर आएगा, क्योंकि उसको बताकर हम गए थे। तो यही हाल उनको, उनके कई अंबिया जो है बनी इसराइल में आए, ये यहूद और नसारा, उनमें कई अंबिया आए। तो देखिए, ये बात हुई कि वो दुनिया की मोहब्बत में डूब गए। अल्लाह की किताब यानी जो तौरात उन पे उतरी थी बनी इसराइल पे, उन्होंने उसे पसे पुष्ट डाल दिया। पैगंबर जो उनके साथ आए थे, पास आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद कई अंबिया का सिलसिला जारी रहा, तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो देखिए, वो जादू टोने में पड़ गए, अपनी किताब को छोड़कर तौरात को जादू टोने में पड़। तो उसका ये असर हुआ कि अल्लाह के गजब में मुब्तला हुए। देखिए, सोचने की बात यह है, थोड़ी देर का हम सोचे, क्या हम क्या हम भी ऐसी कर रहे हैं? क्या ये करतूत और उनके ऐसे अमाल, उनके जराइम के हमारे भी हो गए? हम अपना जायजा ले। क्यों? देखिए, जब भी हिदायत पर इस्तेकामत करना है, उस पर रहना है, हिदायत पर रहना है, तो जरूरी यह है कि हम गुनाहों से बचे। हिदायत पर रहने के लिए गुनाहों से बचना भी जरूरी है। अहकाम की खिलाफ वर्जी हम अगर करेंगे, अल्लाह ने जो बातें बताई हैं, जो अहकाम बताए हैं, जो हद हमें बताई गई है, और जो अहकामात अल्लाह ने हमको दिए हैं, उसको अगर हम खिलाफ वर्जी करते हैं, उससे उलट करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह ताला तो नाराज होगा ना? होगा ना नाराज? होगा अल्लाह ताला। तीसरी बात यह है कि अल्लाह इल्म से दूरी जो होती है गुमराही की वजह बनती। अमल तो कर रहे हैं हम, लेकिन हमारे पास इल्म ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गुमराही हो जाता है इंसान, राह से भटक जाता है, इफरात और तफरीत का शिकार हो जाता है। जैसा कि इफरात का शिकार कौन हुआ? ज्यादती किसने की? नसारा ने की। इफरात किसने किया? यहूदियों ने किया। तो देखिए,
दोनों से भी हमको बचना है, और अल्लाह और रसूल ने जो बातें बताई है उस पर हम अमल करना है, मोहब्बत के साथ करना है, अपने अकीदे में, अपने आमाल में, अपनी मोहब्बत में अल्लाह रसूल के साथ जो है उसमें गुलू नहीं करना है, और जो बताया गया है उसी पे हमको फोकस करना है, जो अहकाम हमको बताए गए उसी पर हमारी फोकस हो। अब हमारा अपना जायजा लेते हैं आखिरी के लम्हात में। सबसे पहली बात ये कि हम क्या कहाँ सूरह फातिहा को समझ कर पढ़ते हैं। देखिए, इसमें गुफ्तगू हो रही अल्लाह ताला के साथ, जैसा पहले आयतों में गया था कि जब बंदा बात करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, हाँ, बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। अल्लाह ताला कहता है कि बंदे ने मेरे हमद किया, और उसके सूरह फातिहा मेरे उसके दरमियान मुश्तरक है, यानी कॉमन है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं उसने जो दुआ मांगी उसकी दुआ जो है कबूल हो गई। तो देखिए, इसका तकाजा ये है कि हम उस पर अमल करें, अल्लाह का शुक्र अदा करे, रहमत की उम्मीद रखे, आखिरत का खौफ हमारे दिल में रखे, और अल्लाह ही की हम इबादत करे, और अल्लाह ही से हम मदद मांगे। और कैसी मदद मांगना है? मोहताज समझ कर के, अल्लाह मोहताज है, हिदायत की दुआ मांगना है, इनाम याफ्ता लोगों में शामिल होने की हमको दुआ मांगनी है, और मगजूब अलई और जालिम से बचने की हमें कोशिश करना है। क्या हम दीन का इल्म हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? हम अपना जायजा ले आज खड़े होकर। अपने नफ्स की ख्वाहिशा से बचना है, मन चाही नहीं बल्कि रब चाही हमको जिंदगी गुजारनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमारे 3 दीन के प्रोग्राम में सूरह फातिहा का मुताला, तर्जुमा, तशरीह, तकाजे सामने आए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ सीखा है, सुना है, समझा है, अल्लाह उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिसे बड़ी प्यारी हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, रवाहुल बुखारी। बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो सीख रहे हैं और जो सिखा रहे हैं वो दोनों भी बेहतरीन लोग हैं। देखिए, आप लोगों का पहले इसमें बताया गया कि जो सीख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हाँ, उनको कहा गया, जो बाद में जो पढ़ा रहे हैं उनको दर्जा दूसरे नंबर पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से मैं आखिर में और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां फरमाए, हमारे लिए भी आसानियां फरमाए, हमें अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ सवालात है?